Good morning, friends. We are discussing about the reasonized 5 question. Let's discuss the first question. First question is related to the polity section, which they are asking about the DPSP. बात करें DPSP की that are given in the part 4 of the Indian Constitution and article from 36 to article 51. And let's see the question. Question is related that which of the following directive principle was added to the constitution through amendment. तो कौन सा DPSP जो है constitutional amendment जो 42nd constitutional amendment है तो उसके थ्रू ऐड किया गया है. First statement is like to secure opportunity for health and development of children. First, second, equal pay for equal men and women. Number third, to promote equal justice and to provide the free legal aid to the poor. So you have to choose the correct option from the given option. First, second, third, first, second, third. Again, repeat the question. Which of the following DPSP were added through the amendment? Number first, to secure opportunity for healthy development of the children. Second, equal pay for equal men and women. मतलब उनको पे इक्वल मिलना चाहिए ताकि थर्ड प्रमोट करने के लिए इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल सर्विस ऑल्सो. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. If you're talking about the next question that is related to the geography section, they're asking about the interior structure of the number. First statement regarding it is said like that Moho discontinuity form the boundary between the mental core and the core of that sea. There is the earth. There is 3 parts of the earth, that is first is core, second is mental, number third is crust. ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं inner core and outer core, mental, upper mental and lower mental, number third upper crust and lower crust, like that, right? तो मोहो discontinuity lie between the mental and the core of the earth. तो core here, outer core basically and the upper mental. तो ये इस तरीके का. Second, lithosphere is the main source of the magma. So lithosphere is the main source of the magma erupt as lava in volcano. So number third statement is said like that outer core is liquid while the inner core are solid. So you have to choose the correct option from the given option. और अगैन रिपीट द क्वेश्चन. बात की जा रही है अर्थ के डिसकंटिन्यूटी फैक्टर की, जिसमें पूछा जा रहा है जो मेंटल एंड कोर जो अर्थ है उसकी डिसकंटिन्यूटी को मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है. सेकंड बात करें लिथोस्फीयर जो है मेन सोर्स है मैग्मा का लावा को बनाने के लिए, जो लावा हमें दिखता है बेसिकली. नंबर थर्ड outer core is liquid while thin core is solid. So you have to choose the correct option from the given option. Let's see the next question. Let's see the next question. Next question is related to the history section. They are asking about the social reform and reform that are associated with it. Number first statement say what first social reformer is Jyotiba Phule. First statement regarding him, is it true started with Athens School for Girls Education. Second, Dadabhai Naoroji that give professed legal status and inheritance rights for the Parsi women specifically. Number third, Bal Shastri Jambekar attacked Brahminical orthodoxy. So you have to choose the correct option from the given option. I again repeat the question. सोशल रिफॉर्मर जे रखे हैं रिफॉर्म उन्होंने क्या क्या किए हैं उसके बारे में है. पहला जो सोशल रिफॉर्मर डेट ज्योतिबा फुले, उन्होंने बैतने स्कूल गर्ल्स के लिए स्टार्ट किया था. इज इट दादा भाई नरोजी ने लीगल स्टेटस देने की कोशिश की थी पारसी वुमेन के लिए. नेक्स्ट है बाल शास्त्री जम्बेडकर, उन्होंने ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी पे अटैक किया था, मतलब उन्होंने खिलाफ उसके बोला था. इट मीन इट्स ही इज़ अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी एंड whom is that is Bal Shastri Jambekar. So you have to choose the correct option from the given option. See, these are their options. Let's see the next question. Next question, if you are talking about the legal tender basically, which of the following can be considered the legal tender? Number first option is currency note that are issued by the RBI. Second, coins issued by the government. Number third, check issued by a private person, for example in the form of the commercial paper and bill of money, कुछ ऐसे ही करके जो वो issue करते हैं. And option are these: first, second, first, third, second, first, second, third. Again, repeat the question. Which of the following can be considered as the legal tender? Number first, the currency notes issued by the. What do you mean by the legal tender? Legal tender is nothing but you have to accept that money that are issued by the government. That it means it is authorized by the government. Number second statement, coin issued by the government. Number third, check issued by the private person. Let's see the next question. Next question, if you are talking about the Geological Survey of India, JSI, Geological Survey of India, consider the following statement regarding it. Number first, it is a statutory body under the Ministry of Forest, Climate Change and the Protection Act of 1986 itself it made. Second, it undertakes the environment impact assessment with regard to the fauna. Number third, it prepares the red data book of fauna of India and fauna of a state. So you have to choose the correct option from the given option. First, second, third, first, second, third. Again, repeat the question. Geological Survey of India के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है. क्या ये जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1986 के हिसाब से बनाया गया था अंडर द Environment, Forest and Climate Change. Number second, it undertakes environment impact assessment with regard to the fauna. Number third, it prepares the red data book of fauna of India and of a state also. Let's see the next. Answer the first question basically. Let's see the thing. Which of the following DPSP जो है constitutional amendment के साथ ऐड किया गया था to secure opportunity for healthy development of a children? That is correct. I think 43 something है. Equal pay for equal remuneration, that is incorrect. That is already given in that. To promote equal justice, to provide free legal aid to the service. Yes, that is the 42nd concept. नहीं. I think. NALSA Act of 1987 and that are added into 39A. Right? Let's see the explanation that are given with reason itself. First statement is not correct because it was added to the amendment of DPSP through the 42nd Constitution Amendment of 1976. Just a minute.
ठीक है 39 में डाला गया था रिगार्डिंग द स्टूडेंट और द चिल्ड्रन। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट बिकॉज इट वाज अ पार्ट ऑफ 39 ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था और ये 39 में ही रखा गया है। वो 39A है जो मैं अभी बात करूँ 39A 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ हमारा नालसा लीगल सर्विस के लिए बारे में बताया गया है और 1987 में ढंग से इफेक्ट लाने के लिए इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लागू किया गया था अंडर द राजीव गांधी गवर्नमेंट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग आर द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो इनमें से आपको बताना था कौन सा सही है इंटीरियर। तो यहाँ पे थर्ड सही है। आउटर कोर जो है लिक्विड है, इनर कोर जो है सॉलिड है। सेकंड की बात करें लिथोस्फीयर द मेन सोर्स ऑफ द मैग्मा। नो लिथोस्फीयर नहीं है बल्कि आपका मेंटल जो है वहाँ से आपका मेन मैग्मा आता है। देखो सेकंड नॉट करेक्ट एज द एस्थेनोस्फीयर नॉट लिथोस्फीयर विच इज द सोर्स ऑफ द मैग्मा। Lithosphere consists of the crust, uppermost solid mantle also be the part of the asthenosphere, and that is the main basic reason that from the magma is coming, and that is the weak part basically. So that's why the magma is coming from there, right? ऐसा नहीं है कि कहीं से magma निकल जाएगा, जहाँ से weak point होगा, जहाँ पे asthenosphere में पाया जाता है। What do you mean by the asthenosphere? Asthenosphere is nothing like that. तो उसमें जो होता है एक लिक्विड टाइप से होता है, मतलब जो है इम्प्योर लिक्विड और मैग्मा होता है इम्प्योर पार्टिकल का। फर्स्ट इज मोहो डिस्कंटिन्यूटी नहीं, उसको मोहो डिस्कंटिन्यूटी नहीं बल्कि मोहो डिस्कंटिन्यूटी द बाउंड्री बिटवीन द क्रस्ट एंड द मेंटल। बाउंड्री बिटवीन द मेंटल एंड द कोर जो है गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये अर्थ है तो यहाँ पे हेप्टेट है जो बीच वाली है, देन उसके बाद मोहो आता है, देन सबसे लास्ट में लेहमन आता है, देन यहाँ पे गटनबर्ग आता है और आप यहाँ पे एक और डिस्कंटिन्यूटी आता है, ये आप देख सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन सोशल ज्योतिबा फुले नहीं, ये बैतनी स्कूल ऑफ गर्ल्स इन्होंने नहीं बल्कि ईश्वर विद्या चंद्र सागर ने स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगर फर्स्ट गलत है तो फर्स्ट गलत है तो ये गलत है। सेकंड दादा भाई ने ये बिल्कुल सही है कि ये खुद से एक पारसी थे एंड इन्होंने 3 बार जो है INC की प्रेसिडेंटशिप निभाई है। बाल शास्त्री जम्बेकर अटैक्ट और ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्स दैट आल्सो विद द करेक्ट। लेट्स सी द आंसर। ज्योतिबा फुले स्टार्टेड गर्ल्स स्कूल इन पुणे। बैतने स्कूल जो है गर्ल्स एजुकेशन के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। उन्होंने आई थिंक 36 से ऊपर स्कूल स्टार्ट किए गए थे गर्ल्स के लिए ईश्वर विद्यासागर के द्वारा ही। सेकंड स्टेटमेंट इफ टॉकिंग दादा भाई नौरोजी जो वन ऑफ द फाउंडर रहे हैं पारसी लॉज के, तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वुमेन की अपग्रेडेशन के लिए रिगार्डिंग द पारसी कम्युनिटी। नंबर थर्ड बाल शास्त्री जम्बेकर जो है वन ऑफ द फर्स्ट रिफॉर्मर रहे हैं बॉम्बे के। ही अटैक्ड द ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी एंड ट्राइड टू रिफॉर्म पॉपुलर हिंदुइज्म दैट आल्सो द करेक्ट। लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन। तो इसमें से आपको बताना था लीगल टेंडर कौन सा है। थर्ड नहीं है चीफ जो एक प्राइवेट पर्सन के द्वारा है वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। कॉइन इशूड बाय गवर्नमेंट RBI जो 1 रुपये का सिक्का जारी होता है तो गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस सेक्रेटरी द्वारा करते हैं। बट यस जो काम करता है उसको टेंडरिंग करने को RBI का है। तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे सही है। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। एनी इंस्ट्रूमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया दैट इज नो ट्रांजैक्शन कॉल्ड द लीगल टेंडर एंड करेंसी एंड कॉइन्स कैन नॉट बी रिफ्यूज फॉर द सैंक्शन। तो लीगल टेंडर की बात आई है तो यहाँ पे 8 नवंबर 2016 में है ना, 2016 में जो नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसमें 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया था। उससे पहले इंदिरा गांधी नहीं 1978 में भी ये काम किया गया था मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जियोलॉजिकल एक स्टैट्यूटरी है नहीं, ये जियोलॉजिकल नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा 1951 में 15 में स्टार्ट की गई थी। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अगर फर्स्ट गलत है तो सेकंड थर्ड आंसर निकल ही रहा है। इट अंडरटेक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट विद, तो ये भी ठीक है। फोना से रिगार्डिंग ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, फोना का मतलब क्या होता है फ्लोरा फोना दैट इज वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। इट प्रिपेयर द रेड डाटा बुक फॉर इंडिया, तो ये भी सही है फॉर द स्टेट। लेट्स सी द थिंग्स। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज अ सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर है जो 1916 में हमारे सामने थे। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये याद रखना। एज अ नेशनल सेंटर फॉर द फोरेस्टिक survey and exploitation of the resource leading to the advancement of the knowledge and the exceptionally rich fauna diversity of the country। ये सही जो है इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में लाई करता है। इट हैज़ नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी एक्ट, तो स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं है इसका। तो ये एक्टिविटीज़ इंक्लूड करती है स्टडी ऑफ द फोन ऑफ द स्टेट, फ्लोरा ऑफ द स्टेट सर्वे ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, फोन ऑफ इंडिया, इकोलॉजिकल स्टडीज, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट दैट आर रिलेटेड टू द एनिमल्स दैट आर कंसिडर इन देयर ज्यूरिडिक्शन। वन ऑफ इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि इसका प्रिपेयर करना रेड डाटा बुक को, ये मतलब मॉनिटर करना कि कौन सी जो प्रजाति है वो बढ़ रही है घट रही है इसी तरीके से, ताकि हम अच्छी तरीके से पॉलिसी बना सकें। जैसे अंडरटेक करते हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ एंड प्रोवाइड नेसेसरी सर्विस टू एसेस पॉसिबल इम्पैक्ट एंड ऑल्सो मिटिगेटिंग मेजर। तो ये लेते ही है ताकि गवर्नमेंट को बताया जा सके, पर इनकी जो रिकमेंडेशन मैंडेटरी नहीं है, गवर्नमेंट की माने या ना माने। बात कर ले रहे हैं इसरो की। इसरो GSAT-1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए दिया गया है। क्या है ये? इसरो जो है रीशेड्यूल किया अपना लॉन्च ऑफ GISAT टू ब्रॉड GSLV F10 रॉकेट ड्यू टू द सम टेक्निकल इशू। इसरो क्या है? इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है, जिसका प्लान होता है कि जितने भी स्पेस एक्सप्लोरेशन के मिशन है वो इसको ये लॉन्च करें। जो लॉन्च है वो डिलेड किया जा चुका था कोविड-19 की वजह से, बट फिर फर्दर इसमें काम नहीं होने की वजह से ये आगे भी डिलेड किया जा चुका है। एक 14 फ्लाइट होगी GSLV की एंड जो GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैज बीन स्टेज विद अ डिफरेंट फीचर
इट इज़ कैपेबल ऑफ द प्लेसिंग 2.310 ऑफ द इनसेट क्लास ऑफ द कम्युनिकेशन सर जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसका काम होता है कि सेटेलाइट को हमें पहुँचाए। GSLV जो है रिप्लेस किया गया जिसे हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय द जो GSLV है रिप्लेस किया जा चुका है GSLV Mark II से, विच इज़ द लार्जेस्ट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय इन इंडिया। GSAT फर्स्ट मिशन के बारे में बात कर ले रहे हैं जो हमें अभी छोड़ना था। ये जो है फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट एजाइल अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है जो ऑब्जर्वेशन इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात करें 36,000 किलोमीटर अब अर्थ सरफेस पे घूमती है या फिर जियो सिंक्रोन होती है हमारी अर्थ के साथ। सेटेलाइट जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ऑर्बिटल पीरियड इक्वल टू द अर्थ, तो ये इसकी खासियत होती है कि जो हमारा रोटेशन पीरियड होता है, रोटेशन पीरियड ऑफ द अर्थ इज इक्विवेलेंट टू द जियो स्टेशनरी। ताकि और एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी मिनिमम सेटेलाइट अगर हम प्लेस करें ऑर्बिट में जिससे पूरी की पूरी अर्थ की पिक्चर एक ही बारे में ली जा सके, तो वो 3 है और वो जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट में ऑर्बिट में ही प्लेस करके ली जा सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? रियल टाइम इमेज हमें प्रोवाइड करना है एरिया के रिगार्डिंग, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारा कौन सा एरिया डेवलपमेंट में नहीं है, कौन सा एरिया डेवलप हो चुका है। दूसरी कंट्री पे स्पाई करने में भी काम में लिया जा सकता है। सेकंड है कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये हमारे लिए एक कॉन्टेंशियस इशू है जहाँ पे हमारे नेबर इतने हॉस्टाइल है, तो हमें इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे नेबर क्या कर रहे हैं। इट शुड बी लाइक दैट। फॉर एग्जांपल लद्दाख में जो इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि मॉनिटरिंग करना नेचुरल डिज़ास्टर के लिए तो पहले मिटिगेशन मेजर किया जा सकता है। मिटिगेशन मतलब अगर एक बार डिज़ास्टर आ भी जाए तो बाद में भी उसके लिए मेजर लिया जा सके। ऑब्टेन स्पेक्ट्रल सिग्नेचर फॉर द एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, मिनरोलॉजी, क्लाउड प्रॉपर्टीज, स्नो, ग्लेशियर एंड ओशनोग्राफी। ये जो है मल्टी सेक्टर एंड हाइपर स्पेक्ट्रल पेलोड एंड हाई रेजोल्यूशन कैमरा इसमें कंसिस्ट होते हैं। इट हैज़ अ 4 मीटर डायमीटर लाइव shaped payload fairing for the first time in GSLV fighting to accommodate a large spacecraft. Let's see. A payload fairing is a nose cone shaped by the spacecraft for protection against the dynamic pressure and aerodynamic heating during launch. ये जो है वेट अराउंड 2268 kg एंड लाइफ स्पैन फॉर 7 ईयर्स की रहने वाली थी। तो लेट्स सी अबाउट द सम ऑफ द फैक्ट अबाउट इसरो लॉन्च के मैनी अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट सिंस IRS फर्स्ट ए सेटेलाइट लॉन्च इन 1988 में सबसे पहली सेटेलाइट को लॉन्च किया गया था। करंटली जो है इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंस्टलेशन है हमारे रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट का ऑपरेशन में है, जो मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट कंस्टलेशन ऑफ द रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट इन ऑपरेशन दैट आर फाउंड ऑब्वियसली इन स्पेस। रिजोल्यूशन कार्टोसैट, राइसैट जो है सम ऑफ द एग्जाम्पल या फिर ऑपरेशन सेटेलाइट है। IOS फर्स्ट इज द मोस्ट रिसेंट अमंग देम है। They provide data for mapping, monitoring of land, forest, resources like water, mineral, weather and climate observation, right? तो ये यहाँ पे की कुछ स्पेसिफिसिटी है। लेट्स सी अबाउट द कंट्री, सिटी एंड रिवर वेयर इट लोकेटेड। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, USA की बात करें तो सिटी जो है USA की किस रिवर पे, तो हडसन रिवर पे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हडसन रिवर पे। पाकिस्तान की बात करें तो लाहौर है। ये फेमस किसके लिए है न्यूयॉर्क की हडसन सिटी? ये ऑटोमोबाइल के लिए नहीं, मतलब हाँ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए। लाहौर की बात करें तो रावी नदी पे है, याद रखिएगा। एंड रावी नदी पे यस। और आई थिंक जो हरप्पा का जो टाउन था, हरप्पा इटसेल्फ, हरप्पा एक खुद में ही टाउन था, तो वो भी रावी नदी पे ही है। इजिप्ट की बात करें तो कायरो है। नाइल यहाँ पे सनाइन पेनिनसुला बहुत ज़्यादा फेमस है। इजिप्ट गिफ्ट ऑफ नाइल भी कहा जाता है इजिप्ट को, तो कायरो नाइल नदी पे है। सूडान की बात करते हैं तो यहाँ पे वाइट नाइल और ब्लू नाइल आके मिलती हैं, और ये सूडान की कैपिटल खार्तून में है और ये नाइल नदी के ही किनारे पे है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें पर्थ है। पर्थ इसकी जो सिटी है वो स्वान नदी पे है, ये याद रखना। जर्मनी की बात करें तो ये हमबर्ग जो इसका शहर है वो एल्बे नदी पे है। यूक्रेन की बात करें तो कीव डैनी पर, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है यूक्रेन, तो याद रखना इसके बारे में। नीदरलैंड की बात करते हैं तो रोटरडम इसका जो कैपिटल नहीं है बट इंपॉर्टेंट शहर है, वो राइने नदी पे है। आर से रोटरडम, आर से राइने। वेनेजुला की बात करें तो कारकस इसकी जो कैपिटल ही है वो ओरिनोको नदी पे है, जो पूरी की पूरी अटलांटिक ओशन में गिरते हैं, आई थिंक सो। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की जो सिटी है सिडनी, वो डार्लिंग नदी पे है। कनाडा क्वेबेक, सेंट लॉरेंस जो बॉर्डर भी बनाती है USA के बीच में और कनाडा के बीच में। पोलैंड की बात करें तो वॉर्सो है, वॉर्सो वाला जो शहर है इसका, इवन कैपिटल भी है, विस्टुला नदी पे है। सर्बिया की बात करें तो बेलग्रेड। डोनाबे जो है इराक जो है बगदाद इसकी कैपिटल है, तो टिग्रिस नदी पे है। इवन जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी यहीं पे ही पाई जाती है। बात करते हैं पाकिस्तान की कराची, इंडस नदी के ऊपर है, और जो लाहौर था वो रावी नदी के ऊपर, वो हम ऊपर देख ही चुके हैं। बात करें ईरान की, इराक की, तो ये बरसा इसका एक शहर है, वो डजीला एंड फर्मट याद जरूरी नहीं। अर्जेंटीना की बात करें तो इसकी कैपिटल है ब्यूनोस आयरेस एंड ला प्लाटा यहाँ पे रिवर है जिसके ऊपर ये लोकेटेड है। USA की बात करें न्यू ओरलियंस मिसिसिपी रिवर के ऊपर है, और ये फुट टाइप से वो बनाती है, फुट टाइप ऑफ डेल्टा बनाती है, ये याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इजिप्ट की बात करें तो असवान है, मतलब असवान डैम भी नाम फेमस है बहुत ज़्यादा, ये नाइल नदी के ऊपर ही बना हुआ है। बात करें जापान की, टोक्यो की कैपिटल, इसको पहले निपोनो नाम के से जाना जाता था, और ये अरकावा जो सुमिदा की ट्रिब्यूटरी है उसके ऊपर स्थित है। पोर्तुगल लिस्बन इसकी कैपिटल है, टोगोस नदी पे ये है। अमेरिका का सेंट लुइस अगैन मिसिसिपी है। अगैन हमने जो न्यूयॉर्क देखा था
वो हडसन नदी के ऊपर था, लेकिन यूएसए का एक शहर और देखा था, न्यू ऑर्लियंस, वो भी मिसिसिपी नदी के ऊपर था। इंडिया की बात करें न्यू दिल्ली जो यमुना नदी पे पड़ता है। रशिया की बात करें मॉस्को, तो मॉस्को नदी पे ही है। रोस्कोसमोस इसकी स्पेस एजेंसी है। और बाय दिस वी आर एंडिंग द सेशन। थैंक यू सो